السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ایپیسوڈ پہ آپ نے اتنا اچھا رسپانس نہیں دیا، پتہ نہیں کیوں نہیں دیا، حالانکہ میں تو اب ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں اور اب میری کوشش ہے کہ ایک دن میں 2 ایپیسوڈز اپلوڈ کیا کروں۔ دیکھتے ہیں آپ لوگ کیسا رسپانس دیتے ہیں۔ تو آج ہے میگا ایپیسوڈ، یعنی کہ بہت بڑی ایپیسوڈ، بہت مزہ آنے والا ہے اس ایپیسوڈ میں۔ اس ناول کے بعد میں ایک اور سیریز سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی یہ ناول مکمل ہوگا اسی دن اگلا ایپیسوڈ آ جائے گا اس سیریز کا، تو آپ نے وہ ریڈ کرنا نہیں بھولنا۔ وہ اس سے بھی زیادہ مزے کا ناول ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں قسط نمبر 33 کی جانب۔ احمد شاہ کمرے میں بیٹھا ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ دن یاد کر رہا تھا جب یہ شال اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ یہ شال کتنی مختلف تھی وانیہ سے۔ کبھی اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ اس کو مجھ سے گلہ تھا تو صرف اس بات کا کہ میں اس کو وقت نہیں دیتا، راتوں کو گھر لیٹ آتا ہوں۔ اس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہاں لے چلو، مجھے وہاں لے چلو۔ احمد شاہ کو آج یہ شال کی محبت کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ وانیہ کی ان بے شرم حرکتوں کو دیکھ کر بہت ٹوٹ گیا تھا اندر سے۔ شاید آج سے پہلے اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ وانیہ کی بہت فکر کرتا تھا، مگر آج سے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس سوچ میں گم تھا کہ جس سے میں نے محبت کی اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور جس نے مجھ سے محبت کی میں نے اسے دھوکہ دیا۔ یعنی یہ شال تو اس سے محبت کرتی تھی نا، اس نے یہ شال کو دھوکہ دیا، اور وانیہ سے وہ محبت کرتا تھا، وانیہ نے اسے دھوکہ دیا۔ احمد شاہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے صوفے پر بیٹھی وانیہ مزے سے ہاتھ میں فروٹ کی پلیٹ لیے بیٹھی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا فیورٹ ڈرامہ انجوائے کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر احمد شاہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ وانیہ نے فروٹ کی پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور بیچارہ منہ بنا کر احمد شاہ کے پاس آئی۔ میں کیوں جاؤں یہاں سے میرے احمد شاہ؟ تم مجھے معاف کر دو نا۔ وانیہ نے احمد شاہ کی شرٹ کے کالر کو صحیح کرتے ہوئے کہا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، سمجھ آئی تمہیں؟ احمد شاہ نے وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے احمد شاہ تمہیں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتے تھے تم، وانیہ نے بیچارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیونکہ پہلے میں تمہاری حرکتوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، نہ جانے کون سا وہ دن تھا جس دن مجھے تم جیسی عورت سے محبت ہوئی تھی۔ احمد شاہ نے وانیہ کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ بس کرو، میں نے تمہارے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا جو کہ کوئی بھی لڑکی نہیں چھوڑ سکتی کسی کے لیے اپنے سگے رشتوں کو۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑو، تم خود اپنی مرضی سے چھوڑ کر آئی ہو۔ بلکہ چھوڑ کر کب آئی ہو؟ روز تو ملنے جاتی تھی اپنی بہن سے، کبھی وہ یہاں آ کر ہفتہ ہفتہ رہتی تھی۔ ایسے کہو کہ تم نے اپنے پرانے عاشق کو چھوڑا میرے لیے۔ احمد شاہ بس کرو، بہت ہو گیا، میں یہاں اپنی بے عزتی کروانے نہیں آئی تھی تم سے۔ وانیہ نے احمد شاہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ آنکھیں نیچے رکھو اپنی، تمہارے عاشق سے مل کر آیا ہوں میں، بتا رہا تھا وہ تمہارا پہلا عاشق تھا، وہ تمہارا پہلا عشق تھا جس کو تم نے پیسے کے لیے چھوڑا اور مجھے اپنے پیچھے لگا لیا۔ یہ سن کر وانیہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں اس نے احمد شاہ کو سب کچھ تو نہیں بتا دیا جو اس کے اور دانش کے بیچ میں ہوا تھا۔ تم کیوں ملنے گئے تھے اس سے؟ اور وہ میرا کوئی عاشق نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اسے چھوڑا تھا، میں تو صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم نے اسے چھوڑا یا نہیں چھوڑا، مگر میں نے تمہارے پیچھے یہ شال اور اپنی بیٹی کو چھوڑا ہے۔ احمد شاہ پلیز غصہ ختم کرو، ایسے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے آگے 2 ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وانیہ نے احمد شاہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اب میں مزید تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ احمد شاہ وانیہ کو دھکا دے کر چلا گیا۔ وانیہ پیچھے صوفے پر جا گری۔ احمد شاہ رکو۔ احمد شاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ جاؤ بیٹا، دیکھو کون ہے گیٹ پر۔ جی امی، میں دیکھتا ہوں۔ زاویار ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا۔ امی اشال اور ارہا بھی وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔
वाह जी वाह, आज कहाँ से सूरज निकला? जावियार ने गेट खोलते हुए कहा। दुआ और शहरयार गाड़ी से उतरे और शहरयार जावियार को गले मिला। कैसे हो? दुआ ने जावियार की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ मोहतरमा, आप कैसी हैं? जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक। चलो आओ अंदर। टीवी लाउंज में दाखिल होते ही शहरयार ने इरहा को आवाज़ दी। इरहा चाचू की जान, ये कहते हुए शहरयार ने इरहा को पकड़ा और उसे चूमने लगा। कैसी हैं आप? ये कहते हुए दुआ ये शाल की जानिब बढ़ी और गले मिलने लगी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मिल गई फुर्सत आने की मोहतरमा? ये शाल ने शहरयार से पर्दा कर लिया था। आओ कमरे में आओ। दुआ ये शाल दुआ को अपने साथ कमरे में ले गई। हम यहाँ बैठकर गपशप करते हैं, ये शाल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। एक खुशखबरी लेकर आए हैं हम, दुआ ने ये शाल की तरफ देखकर कहा। कैसी खुशखबरी? ये शाल ने हैरानगी से कहा। शहरयार का निकाह है कल हया के साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। काश कि आप भी शादी में शामिल होती हमारे साथ, दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। ओहो, कोई बात नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। शॉपिंग हो गई क्या? नहीं तो इरहा को लेने आए हैं, इसे लेकर जाएंगे शॉपिंग पर। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? दुआ ने कहा। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ न मुझे क्यों एतराज़ होगा भला? वो तुम लोगों का खून है, मैं उसे कैसे अलग कर सकती हूँ तुम लोगों से? ये शाल ने दुआ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आपको कुछ बताना भी है, दुआ ने धीमे लहजे में कहा। हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ, ये शाल ने कहा। उस घटिया औरत ने घटिया हरकतें करने की इंतहा कर दी और भाई ने उसे घर से निकाल दिया है, और मुझे तो अब ऐसा लगता है जैसे भाई उसे नफरत करने लगे हैं। दुआ ने खुश होते हुए ये शाल को बताया। ये शाल जरा सा मुस्कुराई। देख लो फिर, मेरा सब्र है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुआ ने ये शाल का हाथ पकड़ा। आप बहुत साबिर हैं। दोनों मुस्कुराने लगी। इतने में जावियार अंदर आया। अहम, क्या बातें हो रही हैं भाई? हमें भी तो कोई बताए। कुछ नहीं, ये दोस्तों की आपस की बातें हैं, दुआ ने हंसते हुए कहा। ओह अच्छा जी, आप ही कुछ खाने पीने के लिए दे इन्हें। हाँ मैं हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। तुम दोनों गपशप करो, मैं किचन में जा रही हूँ। ये कहकर ये शाल कमरे से चली गई। शहरयार क्या कर रहा है? दुआ ने कहा। वो इरहा को लेकर बैठा हुआ है बाहर टीवी लाउंज में, जावियार ने दुआ के पास बैठते हुए कहा। इतने दिनों के बाद आई हो दुआ तुम? जावियार ने दुआ का हाथ पकड़ा। हाँ, मैं तो यहाँ आ जाती हूँ, मगर तुम्हारे पास तो मुझसे बात करने का वक्त भी नहीं है, दुआ ने दूसरी जानिब मुंह करते हुए कहा। यहाँ देखो मेरी तरफ। जावियार ने दुआ का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। ऑफिस के काम में इतना मसरूफ़ होता हूँ कि खुद की भी खबर नहीं होती, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ या मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। रात को तुम्हें याद करता करता सो जाता हूँ और सुबह भी पहला ख्याल सिर्फ तुम्हारा ही होता है मेरी दुआ। जावियार ने दुआ के हाथ अपने लबों पर लगाते हुए कहा। यह सुनकर दुआ शर्मा गई। छोड़ो मेरे हाथ, कोई आ जाएगा, दुआ ने कहा। कोई भी नहीं आएगा, पहली बार तो तुम्हारे साथ ऐसे बैठकर बात करने का मौका मिला है। अच्छा अच्छा, बस चलो अब बाहर चलते हैं, हमारे बारे में न जाने क्या सोच रहे होंगे सब। एक तो तुम ये सोच लो कि सब क्या सोच रहे होंगे। सारा रोमांटिक मूड खराब करके रख दिया तुमने, जावियार ने पीछे होते हुए कहा। हाँ तो सही कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कोई हमारे बारे में अपने जहन में गलत ख्याल लाए। अच्छा जी ठीक है मोहतरमा। इतने में ये शाल की आवाज़ आई। दुआ जावियार बाहर आ जाओ। दुआ एकदम ही शाल की आवाज़ सुनकर खड़ी हो गई। पहले मैं जाती हूँ, बाद में तुम आना। जावियार फौरन खड़ा हुआ और कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसके आगे खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो जावियार? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या तरीका है? मुझे बाहर जाने दो, दुआ ने गुस्से से कहा। नहीं जाने दूंगा जावियार, ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? दुआ जावियार को दरवाजे से पीछे हटाने के लिए आगे बढ़ी तो जावियार ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ तो आओ जावियार, छोड़ो मुझे। अभी जावियार ने दुआ को अपने बिल्कुल करीब ही लिया था कि ये शाल ने दरवाज़ा नॉक करके खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा अंदर से नौ बंद था। दुआ के पसीने छूट गए। दुआ ने जावियार ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और निकलकर बाहर चला गया। दुआ बहुत घबराई हुई थी कि ये सब लोग बाहर न जाने क्या सोच रहे होंगे। दुआ क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये शाल ने दुआ की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दुआ से बोला भी नहीं जा रहा था। यहाँ बैठो। ये शाल ने दुआ को पकड़कर सोफे पर बिठाया। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? दुआ ये शाल के गले लग गई। जावियार ने दरवाज़ा बंद कर लिया था और मेरे करीब बहुत करीब आ गया था। मैं बहुत डर गई थी कि बाहर सब पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। दुआ की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये शाल को ये सुनकर गुस्सा आया। चुप हो जाओ मेरी बहन, मैं अभी उस बदतमीज से पूछती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। ये शाल ने दुआ के आंसू साफ करते हुए कहा। आप भी गलत सोच रही होंगी। दरवाज़ा बंद पाकर दुआ ने धीमे लहजे में कहा। मैं क्यों ऐसा सोचूंगी भला? पागल लड़की, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। चलो उठो, मुंह धो और बाहर आकर खाना खाओ, और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
آ گئی دوست کی یاد؟ احمد شاہ کے دوست نے کہا۔ احمد شاہ کا چہرہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ تیرا چہرہ اتنا اداس کیوں ہے؟ مت چھیڑ مجھے، بہت گہرا زخم ہے تیرے یار کا۔ احمد شاہ نے سگریٹ کے دھوئیں میں اپنا غم اڑاتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے بھابھی سے لڑائی ہوئی ہے تیری۔ احمد شاہ کے دوست نے کہا۔ سب ختم ہو گیا ہے، سب۔ یار کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ بتا تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے اس بد کردار عورت نے مجھے۔ احمد شاہ نے سگریٹ کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیسا دھوکہ؟ وہ تو تجھ سے سچی محبت کرتی تھی نا؟ احمد شاہ کے دوست نے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھ سے نہیں، میرے پیسے سے محبت کرتی تھی، پیسے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احمد شاہ۔ یہی حقیقت ہے، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم شہریار کے نکاح کی تاریخ فکس کرنے کے لیے لڑکی کے گھر گئے، اس نے ہمارے پیچھے سے اپنے پرانے عاشق کو گھر بلا لیا۔ وہ تو شکر ہے شہریار نے سب کچھ دیکھ لیا، احمد شاہ نے دکھی لہجے میں بتایا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یار، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اور وہ عورت اس وقت کہاں ہے تمہارے گھر؟ اس وقت کہاں ہے تمہارے گھر، یا تم نے اسے گھر سے نکال دیا؟ احمد شاہ کے دوست نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، مگر وہ آج پھر آ گئی ہے، احمد شاہ نے بتایا۔ تم اسے دھکے مار کے گھر سے نکالو، وہ کیا لینے آئی ہے یہاں پر اب؟ میں جب گھر آیا تو وہ کمرے میں الماری کھولے کھڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے کمرے سے باہر نکالا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے الماری کھولی تو ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ اس کا صاف صاف یہی مطلب ہے کہ وہ پیسے اور جواہرات لے کر جانا چاہ رہی تھی، احمد شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ بہت ہی گھٹیا عورت نکلی وہ تو۔ تم نے صحیح کہا، اس نے تم سے پیسے کے لیے شادی کی تھی، نہ جانے اور کتنے مردوں کو دھوکہ دے چکی ہوگی۔ اور اس کا پرانا عاشق کہاں پر ہے؟ تم نے اسے جیل میں بند کروایا یا نہیں؟ احمد شاہ کے دوست نے کہا۔ ہاں، شہریار نے اسی وقت پولیس کو بلا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، احمد شاہ نے جواب دیا۔ اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بچہ ہونے سے پہلے تو تم اسے طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، مگر میں نے اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھوں گا، نہ جانے وہ بچہ میرا ہے بھی یا کسی اور کا ہے، احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہاں احمد شاہ، ایسی عورت کا کوئی بھروسہ نہیں، تم ایک بار ہسپتال لے جاؤ اسے اور ڈی این اے کروا لو۔ ہاں صحیح کہا تم نے، میں کرتا ہوں کچھ، احمد شاہ نے اداس لہجے میں کہا۔ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مگر دعا منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یشال نے دعا کے کندھے پر تھپکی دی۔ پریشان مت ہو دعا، میں ہوں نا ابھی۔ آنٹی زاویار، آپ لوگوں نے کل لازمی آنا ہے، یہ شال بھابھی کی تو مجبوری ہے، مگر میں انتظار کروں گا آپ کا۔ احمد بھائی سے شاید اب آپ کا کوئی رشتہ نہیں، مگر میرے ساتھ آپ کا رشتہ ہمیشہ رہے گا، اور اب آپ نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں سوچنا اور کل میرے نکاح میں شامل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم ضرور آئیں گے، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ہم آئیں گے میرے یار کی شادی میں، زاویار نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو دعا پھر چلتے ہیں۔ آنٹی بھابھی سے کہیں ارہا کا فیڈر دے دیں، میں ارہا کو لے کر گاڑی میں بیٹھا ہوں، دعا تم جلدی سے فیڈر لے کر آ جاؤ۔ شہریار یہ کہہ کر ارہا کو لے کر چلا گیا۔ دعا ارہا کا فیڈر لے آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے شہریار کے سامنے اپنا منہ ٹھیک کر لیا۔ ارہا کو شہریار نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پہلے ہم ارہا کے کپڑے خریدیں گے، دعا ہم ارہا کے لیے پیارا سا لہنگا لیتے ہیں، یہ بہت پیاری لگے گی اس میں، شہریار نے ارہا کو چومتے ہوئے کہا۔ نہیں شہریار، ابھی یہ بہت چھوٹی ہے، کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، دعا نے جواب دیا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں جا کر۔ اتنے میں شہریار کے موبائل کی بیل بجی۔ شہریار نے موبائل پکڑا تو حیا کی کال آ رہی تھی۔ ارہا کی چاچی کی کال آ رہی ہے بھائی۔ شہریار نے کال بند کی اور ویڈیو کال کر کے حیا کو ارہا کو دکھانے لگی۔ یہ دیکھو ہماری ننھی سی پری، ماشاءاللہ یہ تو بہت پیاری ہے شہریار۔ ارہا حیا کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ شہریار؟ ہم لوگ شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اوہ اچھا، مزے ہو رہے ہیں پھر تو۔ ارہا شہریار کا موبائل پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار ارہا کی پیاری پیاری حرکتیں دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے حیا، بعد میں کال کروں گا، ارہا موبائل پکڑ رہی ہے۔ شہریار نے ارہا کو دعا کی گود میں بٹھایا اور اسے اپنا موبائل پکڑا دیا۔ دعا دیکھو کیسے ارہا موبائل کو منہ میں ڈال رہی ہے، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارہا پھپھو کی طرف بھی دیکھ لو، دعا نے ارہا کو چومتے ہوئے کہا۔ پھپھو کا تو آج پتہ نہیں کس بات پر منہ بنا ہے، شہریار نے کہا۔ میرا کوئی منہ نہیں بنا، بس طبیعت تھوڑی ناساز لگ رہی ہے، تو چلو پہلے تمہاری دعائیں لے آتے ہیں۔ ارے نہیں نہیں، اب اتنی بھی ناساز نہیں ہے شہریار، دعا نے کہا۔ لو جی پہنچ گئے ہم، اسی مال سے ساری شاپنگ کرنی ہے، یہاں سے ہر چیز مل جائے گی۔ شہریار نے گاڑی پارک کی اور وہ لوگ گاڑی سے اترے اور مال میں چلے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ارہا کے لیے کپڑے خریدے، اس کے بعد دعا نے اپنی شاپنگ کی۔ اوف کتنا وقت لگاتی ہو نا تم دعا، تمہیں کوئی چیز ہی پسند نہیں آتی۔ جناب میں صرف اپنے نہیں بلکہ امی اور حیا کے کپڑے بھی ساتھ ساتھ خرید رہی ہوں، دعا نے شہریار کو شاپنگ بیگ مارتے ہوئے کہا۔
तुम मुझे इरहा को दो और जाओ अपनी शॉपिंग करो। मैं अपनी गुड़िया को साथ ले जाकर शॉपिंग कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो जाओ फिर करो। वैसे मेरे ख्याल से हया को बुला लेना चाहिए था, वो अपनी पसंद से कपड़े खरीद लेती। पहनने तो उसी ने है ना। दुआ ने शहरयार की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं, रहने दो, हम खुद खरीद लेते हैं। मैंने उससे कभी भी ऐसे मुलाकात नहीं की। मैं चाहता हूँ कि निकाह के बाद ही वो मेरे साथ शॉपिंग करे, रेस्टोरेंट्स में जाए, घूमे फिरे, सब करे। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी शहरयार साहब। 2 घंटे के बाद दुआ ने अपनी हया और अम्मी की सारी शॉपिंग कर ली। शहरयार, अब सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग रह गई है, चलो जल्दी से वो कर लेते हैं। इरहा सो गई थी, इसे वो लोग कार्ट में लिए घूम रहे थे। इतने में ये शाल की कॉल आई। दुआ ने कॉल अटेंड की। हो गई शॉपिंग, ये शाल ने कहा। हाँ जी, बस शहरयार की शॉपिंग रह गई है, बहुत ही मुश्किल हुई शॉपिंग करने में। मैं अकेली लड़की थी, आप साथ होती तो मुझे कपड़े सेलेक्ट करने में मुश्किल ना होती। ओहो, मेरी मजबूरी थी, वरना मैं तुम लोगों के साथ ज़रूर चलती। ये बताओ, इरहा ने तो तंग नहीं कर किया? ये शाल ने कहा। नहीं नहीं, इसने तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया, हमने सबसे पहले इसी की शॉपिंग की थी और अब मैडम मुझे से सो रही है। शहरयार को तो खूब मज़े आ रहे हैं इरहा के साथ। न जाने इसके लिए क्या क्या ख़रीद लिया है शहरयार ने। दुआ ने हंसते हुए कहा। वाह जी वाह, चाचू और फूफो खूब मज़े करवा रहे हैं अपनी भतीजी को। हाँ, बहुत दिल लगा हुआ है हमारा इरहा के साथ। चलो तुम लोग शॉपिंग करो आराम से। ये कहकर ये शाल ने कॉल बंद कर दी। जावियार, यहाँ आकर मेरी बात सुनो, ये शाल ने सर्द लहजे में कहा। जी आप भी कहें, क्या बात है? जावियार ने ये शाल के पास बैठते हुए कहा। दुआ के साथ क्या किया है तुमने? क्यों इतनी उदास थी वो कमरे से बाहर आने के बाद? ये शाल ने गुस्से से कहा। मैंने कुछ नहीं किया आपी। वो तो मैं बस उसे ऐसे ही तंग कर रहा था। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई जावियार? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की। अच्छा आपी, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, जावियार ने नजरें झुकाकर कहा। वो बहुत शर्मिंदा हो गया था। मैं बस तुम्हें इतना ही कहूँगी कि आइंदा मुझे ऐसी कोई भी तुम्हारी बात सुनने को ना मिले, और तुम दुआ से माफ़ी भी मांगोगे। ये कहकर ये शाल वहाँ से चली गई। शिट यार, मैंने क्या कर दिया? दुआ को तंग करने के चक्करों में दोनों की नज़रों में गिर गया मैं। रात को कॉल करके दुआ से माफ़ी मांग लूँगा। वानिया ने यहाँ वहाँ देखा, कोई भी नज़र नहीं आया इसे, तो फ़ौरन भागती हुई अहमद शाह के कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। निया ने यहाँ वहाँ देखा, कोई भी नजर नहीं आया उसे, तो फौरन भागती हुई अहमद शाह के कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। अहमद शाह भी अभी नहीं आएगा, उसके आने से पहले पहले मैं हर चीज़ का सफाया कर लेती हूँ। वानिया ने अलमारी खोली और उसके अंदर जितने भी पैसे थे और जो भी सोना रखा हुआ था वो सब कुछ अपने एक बैग में भर लिया। महंगे महंगे कपड़े और जूते भी उसने एक बैग में डाल दिए। ये सब करने के बाद उसने महविश को कॉल की। महविश, कॉल अटेंड करो जल्दी, वानिया ने कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए कहा। कुछ देर के बाद महविश ने कॉल अटेंड की तो वानिया ने उसे बताया कि मैंने सब कुछ एक बैग में डाल लिया है, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं वो हर चीज़ लेकर घर पहुंचूंगी। हाँ हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया वानिया, तुम वो सब यहाँ ले आओ, मैं उन सब चीज़ों की हिफाजत खुद कर लूंगी। इतने में नाजिया ने कमरे का दरवाज़ा बजाया। अच्छा ठीक है महविश, कॉल बंद करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पर कोई आया है। वानिया ने जल्दी से वो बैग बेड के नीचे छुपा दिया और दरवाज़ा खोला। हाँ बोलो, क्या चाहिए है तुम्हें? मैं कमरे की सफाई करने आई हूँ, नाजिया ने जवाब दिया। कमरा बिल्कुल साफ है, कोई ज़रूरत नहीं है सफाई करने की आज। वानिया ने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बहुत ही अजीब औरत है ये। नाजिया ये कहकर अम्मी के कमरे में गई और उन्हें बताया कि वानिया बाजी कमरे की सफाई करने नहीं दे रही। ये सुनकर अम्मी को बहुत गुस्सा आया। आओ मेरे साथ, मैं देखती हूँ इसे। दरवाज़ा खोलो जल्दी, अम्मी ने ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा। कहाँ फंस गई हूँ मैं? एक तो ये बुढ़िया पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। वानिया ने दरवाज़ा खोला। जी क्या चाहिए है अब? एक बार सुनाई नहीं दिया कि नहीं करवानी मुझे कमरे की सफाई? वानिया ने सर्द लहजे में कहा। तुम किस कदर घटिया औरत हो, तुम्हें अहमद शाह ने घर से निकाल दिया, तुम फिर भी जबरदस्ती इस घर में रहने की कोशिश कर रही हो, और ये कमरा अहमद शाह का है, उस कमरे में अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, निकलो यहाँ से। अम्मी ने तलक लहजे में कहा। जो करना है कर लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अहमद शाह सिर्फ मेरा है, समझी तुम बुढ़िया? ये कहकर वानिया ने फिर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आने दो अहमद शाह को, देखना कैसे इसे घर से निकलवाती हूँ मैं, अम्मी ने गुस्से से कहा। अम्मी बैठकर सोचने लगी कि इससे अच्छी तो ये शाल थी जिसने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, हमेशा हम सबकी इज्जत की, और एक ये औरत है जिसका किरदार भी अच्छा नहीं है। नहीं है, न जाने ये बच्चा भी इसके पेट में अहमद शाह का है भी या नहीं। मैंने अपनी हीरे जैसी पोती को गंवा दिया सिर्फ पोते के लालच में। चलो दुआ, सारी शॉपिंग तो हो गई, अब घर चलते हैं। बस निकाह वाला मेरा ड्रेस रात तक मिलेगा, वो मैं खुद लेने के लिए आ जाऊंगा अपने दोस्त के साथ। हाँ ठीक है, चलो अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। सारा सामान शहरयार ने गाड़ी में रखवा दिया और घर के लिए निकल गए।
इरहा को भी घर ले जाते हैं अम्मी, और भाई भी मिल लेंगे हमारी गुड़िया से। मैं थोड़ी देर तक इसे छोड़ आऊँगा। शहरयार ने इरहा की तरफ देखते हुए कहा, जो अपनी दुआ पुप्पो की गोद में लेटकर फ़िल्टर पी रही थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ अम्मी को सुनाई दी। नाज़िया, खाना तैयार है ना? बच्चे आ गए हैं। अम्मी ने नाज़िया को आवाज़ देते हुए कहा। जी जी, खाना तैयार है बाजी, नाज़िया ने जवाब दिया। शहरयार और गार्ड सारा सामान अंदर लेकर आए और दुआ ने इरहा को उठाया हुआ था। ये देखें अम्मी, कौन आया है? इरहा को देखकर अम्मी खुश हो गई। मैं अभी इसे ही याद कर रही थी। अम्मी उठे और जल्दी से जाकर इरहा को पकड़ अम्मी उठी और जल्दी से जाकर इरहा को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, अम्मी रोने लगी। ओहो अम्मी, रोए नहीं प्लीज़। इतने में अहमद शाह भी आ गया। आ गए तुम लोग? हो गई सारी शॉपिंग? अहमद शाह ने टीवी लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। जी भाई, हो गई सारी शॉपिंग। और अंदर आए, देखें कौन आया है। अहमद शाह की नज़र जब इरहा पर पड़ी तो वो दौड़ता हुआ आया और इरहा को पकड़ लिया और उसे चूमने लगा। बाबा की जान। अहमद शाह ने इरहा को अपने सीने से लगा लिया। बहुत बुरा हूँ मैं अम्मी, बहुत गलत किया मैंने सबके साथ। चुप हो जाएं भाई, देखें इरहा को कैसे देख रही है आपको। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है मगर बाप की मोहब्बत से महरूम रही। इतने में शहरयार भी अंदर आया और ये सब देखकर खुश हुआ कि शुक्र है भाई के सर से इस औरत का भूत उतर गया और बेटी की मोहब्बत इनके अंदर जाग गई। वानिया ने थोड़ा सा कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो अहमद शाह इरहा को लेकर बैठा हुआ था और उसे प्यार कर रहा था। ये देखकर वानिया के मन में आग लग गई। अहमद शाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पकड़ने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वानिया वहाँ खड़ी बड़बड़ा रही थी। आ जाओ, सब खाना लग गया है, अम्मी ने आवाज़ देते हुए कहा। लाएं भाई, इरहा को मुझे दे दें, आप खाना खा लें। दुआ ने कहा। नहीं, मैं इरहा को पकड़े हुए ही खाना खा लूंगा, कोई मसला नहीं है। वानिया ये सब देखकर जल भुन रही थी। आने दो इसे एक बार कमरे में, फिर बताती हूँ मैं इसे, और इस बच्ची का भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद सब लोग बैठे चाय पी रहे थे और सब लोग इरहा के साथ इतने मसरूफ हो गए थे कि उन्हें किसी और चीज़ की खबर ही नहीं थी। मैं अपना निकाह का ड्रेस लेने जा रहा हूँ और साथ में इरहा को भी छोड़ देता हूँ। सुबह से अपनी मार से दूर है। हाँ, छोड़ आओ और इरहा के कपड़े भी ले जाओ, कल ये शाल इसे पहनाकर भेज देगी। ठीक है। शहरयार इरहा के कपड़े जूते सब लेकर इरहा को छोड़ने के लिए चला गया। अहमद शाह का दिल ही नहीं कर रहा था कि इरहा यहाँ से जाए, मगर वो खामोश रहा। आए अम्मी, मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाती हूँ, फिर हम हया के कमरे में उसके कपड़े अलमारी में लगा देंगे। दुआ अम्मी और अहमद शाह को सारी शॉपिंग दिखाने लगी। थोड़ी देर के बाद अहमद शाह उठकर कमरे में गया तो वानिया मैडम बेड पर आराम फरमा रही थी। तुम अभी तक यहाँ हो? अहमद शाह ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों अहमद शाह, मैंने और कहाँ जाना है? उठो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर लेटने की? क्या हो गया है? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, वानिया ने अहमद शाह के करीब आते हुए कहा। पीछे हटो यहाँ से, अहमद शाह ने इसे पीछे करके बेड पर बैठते हुए कहा। वानिया अहमद शाह के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर चूमने लगी। मेरी जान, यहाँ देखो ना मेरी तरफ, उसने अहमद शाह का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा और मजीद उसके करीब हो गई। तुम क्यों मुझसे इतना खफा हो मेरे अहमद शाह? ये कहकर उसने अपने होंठ अहमद शाह के होंठों पर रखे, मगर अहमद शाह ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और उठकर वॉशरूम में चला गया। वानिया ने जल्दी से अपना नाइट ड्रेस पहना, बाल खोले और रेड लिपस्टिक लगाकर बेड पर बैठ गई। वो इसे पहले की तरह अपनी तरफ मतवज्जा करना चाह रही थी। अहमद शाह चेंज करके वॉशरूम से बाहर आया तो वानिया उसकी तरफ नशीली नजरों से देख रही थी। ये सब क्या है? तुम फिर से मेरे बेड पर लेट गई, कितनी ढीठ औरत हो तुम। अहमद शाह सिर्फ इसलिए खामोश था कि कल शहरयार का निकाह है, वो कोई भी तमाशा घर में नहीं चाहता था। ये इस घर में तुम्हारी आखिरी रात है, कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना, अहमद शाह ने तलख लहजे में कहा। अहमद शाह, बस करो, मैं कब से तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम अपनी उस बेटी के साथ भी कैसे हंस हंस कर खेल रहे थे। हाँ तो वो मेरी बेटी है, तुम्हें क्या मसला है? अहमद शाह ने ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाते हुए कहा। वानिया उठी और अहमद शाह के पास जाकर पीछे से उसके सीने के साथ लग गई। वान्या उठी और अहमद शाह के पास जाकर पीछे से उसके साथ लग गई। अहमद शाह, मत करो ऐसा प्लीज़, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। बस करो, ये गुस्सा ख़त्म करो, ये नाराज़गी। अहमद शाह ने उसे खुद से पीछे किया और बेड पर जाकर लेट गया। वानिया भी उसके पास जाकर लेट गई और उसके बाजू पर अपना सर रख लिया। तुम क्या सोच रही हो? अब मैं तुम्हारी इन घटिया हरकतों में आऊँगा? मुझे तुमसे नफरत है। रह लो आज की रात यहाँ, कल शहरयार के निकाह के बाद तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा और डीएनए करवाऊँगा, पता नहीं ये बच्चा मेरा है भी या नहीं। ये कहकर अहमद शाह वहाँ से उठा और शहरयार के कमरे में जाकर सो गया। वानिया गुस्से से आग बगोला हो गई। बर्बाद कर दूंगी मैं इसके ख़ानदान को, समझता क्या है ये खुद को। ओफ रीडर्स, मैं तो पढ़ पढ़ के थक गई ये एपिसोड। आपको कैसी लगी ये एपिसोड? प्लीज़ इस एपिसोड को अब लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी कर देना कैसी लगी। मेरा तो मुंह थक गया बोल बोल के। खुश रहें, आबाद रहें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ख्याल रखें अपना, और बहुत जल्दी नेक्स्ट नॉवल भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।